باطل ہے، لیکن اگر بھولے سے ساون بے اختیاری طور پر اٹھ گیا ہے تو واپس جائے سجدے میں یا رکوع میں. بات سمجھ آ گئی؟ واپس جائے. آئیے سمجھ نہیں آئی؟ پھر اگر امام سے پہلے آپ اٹھ گئے ہیں تو دوبارہ جائیں گے. اچھا، جب دوبارہ جائیں گے ایک سوال پیدا ہوگا. کیا سوال پیدا ہوگا؟ آپ نے تسبیح پڑھنی کہ نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ نے 2 رکوع کیے ہیں یا 2 سجدے کیے ہیں یا 2 مرتبہ رکوع میں گئے ہیں اور یا 2 مرتبہ سجدے میں. یہ بات ہے نا؟ ایسے ہوا ہے نا. آپ امام سے پہلے اٹھ کے تھے سجدے سے، ابھی آپ نے دیکھا امام ابھی سجدے میں ہے، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ سجدے میں چلا جانا ہے. ابھی آپ کے کتنے سجدے ہو جائیں گے؟ آپ کے 2 سجدے ہو جائیں گے. ایک سجدہ آپ کا زیادہ ہو جائے گا، اضافی ہو جائے گا، ایکسٹرا ہو جائے گا. اس کو کیا کریں گے؟ ہے کسی کے ذہن میں اس کے لیے کوئی سجدہ صاحب، کوئی چیز، کوئی ذہن میں ہے؟ اس کے لیے آپ نہ تو سجدہ صاحب کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. بس یہی ضروری تھا آپ کے لیے، اگر آپ امام سے پہلے اٹھے ہیں تو دوبارہ سجدے میں چلے جائیں. یہی آپ کی ڈیوٹی تھی. یہ جو 2 سجدے ہو گئے، دوسرا سجدہ آپ کو جماعت کی وجہ سے معاف ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ اگر کسی موضوع سے دلچسپی رکھتے ہو تو مجھے بتائیں، میں اس کے بارے میں کوشش کروں چند جملے آپ کو سنائیں. جی آپ کہیں میں انشاءاللہ کسی موضوع پر مومنین کی جو خواہش ہو کسی بھی حوالے سے آپ جو بھی چاہیں استفادہ حاصل کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس دور میں ہم زندگی کر رہے ہیں اس کو امام وقت کا دور کہا جاتا ہے، اور ہم اس دور میں ایک منتظر کی حیثیت سے زندگی کر رہے ہیں. اردو سمجھ آتی ہے؟ جی جی جی. ہم منتظر ہیں، ہم کسی کے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں، منتظر ہیں. حضرت کے لیے ایک جملہ پیغمبر گرامی نے فرمایا امام زمان کے لیے، من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتتن جاہلیہ. جو بھی شخص، اب اس میں دیکھیں اس میں قید نہیں ہے کہ شیعہ ہو سنی ہو، من کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی شخص مر گیا، ماتا مر گیا. کیسے مرا؟ وَلَمْ يَعْرِفْ، اس حال میں مر گیا کہ نہیں جانتا تھا. کس کو نہیں جانتا تھا؟ امام زمانے ہی، اپنے وقت کے امام کو. اپنے وقت کے امام کو نہیں جانتا تھا، اپنے وقت کے امام کی شناخت، معرفت، شناسائی حاصل نہیں کی. اپنے وقت کے امام کو پہچاننے سے پہلے موت آ گئی، چلا گیا دنیا سے. کیا ہوگا؟ فرمایا ماتا میتتن جاہلیہ. یہ شخص، یہ کوئی بھی شخص ہو، فرق نہیں کرتا، کوئی بھی شخص ہو. بس یہاں سے ایک بات تو پہلے یہ سمجھا، کوئی بھی شخص، پتا چلا کہ امامت کی معرفت ساری انسانیت پر واجب ہے. ماں ماتا کا جو بھی مر گیا، نہیں کہا جو مومن مر گیا، نہیں کہا جو اہل سنت مر گیا، نہیں کہا جو مسلمان مر گیا، نہیں کہا جو کافر ہے، نہیں کہا جو سکھ ہے، نہیں کہا جو ہندو ہے، عیسائی ہے، اہل کتاب ہے. نہیں، جو بھی بنی آدم کا جو بھی بیٹا مر گیا. ٹھیک ہو گیا؟ بس کیا پتا چلا؟ آپ نے مجھے اجازت دی اس لیے میں نے
इस मौजू को मुनासिब समझा। बस क्या पता चला? बस पता ये चला हमारे लिए सबसे जरूरी अम्र जो है वो वक्त के इमाम की मारिफत है। माता मीततन जाहिलिया का माना मैंने नहीं किया। माता मीततन जाहिलिया का माना उलमाए शिया फुकाहा मुज्तहिदीन ने ये किया है कि वो कुफ्र की मौत मर गया और शिर्क की मौत मर गया। यहाँ जाहिलिया से मुराद कुफ्र और शिर्क है। मुशरिक मरा है, काफिर मरा है। क्या होता है मुशरिक के अमाल का, क्या होता है काफिर के अमाल का? और फिर एक लंबी बात है, अगर वो हालत कुफ्र में दुनिया से जाता है, हालत शिर्क में मुशरिक मरता है, उसको उसके किसी अमल का कोई सवाब नहीं मिलता। बस एक बात और भी पता चली कि आपके और मेरे आमाल के सवाब का ताल्लुक भी इमाम से है। ऐसे अगर आपने और मैंने इमाम को पहचाना तो हमारे अमल में वजन आ जाएगा, हमारा अमल वजन के काबिल हो जाएगा। अमाल तोले जाएंगे, वो एक अलग बात है किस तरह तोले जाएंगे, उधर नहीं जाना चाहता। अमाल किसके तोले जाएंगे? जिसको वक्त के इमाम की मारिफत होगी, और जिसको अपने मौला की मारिफत नहीं होगी उसके आमाल को तोलकर क्या करेंगे? किस लिए तोल रहे हैं? आया है कुरान मजीद की, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि कहा जाएगा इनको रोको, इनसे सवाल करना है। उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा, दुर मंसूर ने लिखा, तफसीर कबीर ने लिखा इस जुमले को, ये सुन्नियों की तफसीर है। कहा सुइला अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, जब माशर में रोका जाएगा कि रोको इनको, वहां पर अली अमीर की विलायत का सवाल किया जाएगा। तो फरमा रहे हैं अगर आपके और मेरे नाम अमाल में मौला की विलायत होगी तो नमाज नमाज बन जाएगी, रोजा रोजा बन जाएगा, हज और ज़कात हज और ज़कात बन जाएगा। अगर मारिफत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। बस जरूरत किस बात की है कि हम वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करें। कैसी मारिफत हासिल करें? कितनी मारिफत होनी चाहिए? कितना आपको और मुझे अपने वक्त के इमाम को पहचानना चाहिए? कितना पहचानते हैं और कितनी जरूरत है मजीद पहचानने की? अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था जहां बैठे हुए थे, मैंने कहा कि आपको और मुझे इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम, बहुत ही मजलूम है, बहुत ही मजलूम है, शक ही नहीं है। बल्कि इमाम मुर्तज़ा आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल मुहम्मद। फरमाते हैं अगर किसी जात की फजीलत देखनी हो तो उसकी कितनी फजीलत है, उसका कितना मकाम है। बोला कैसे देखें? कहा मैं एक तरीका बताता हूं। सातवें इमाम बाबुल आबाई फरमाते किसी भी इंसान की, किसी भी शख्स की फजीलत और मकाम और मर्तबा देखना हो तो उसके मसाइब को देखें। आगे समझ? बोला कैसे देखें? कहा जितने उसके मसाइब होंगे उतने ही उसके फजाइल भी होंगे। बस मसाइब और फजाइल बराबर रहते हैं, बराबर रहते हैं। शरीयत में कुछ चीजें हैं जो बराबर बराबर रहती हैं। एक और चीज बताता हूं जो बराबर रहती है, तवल्ला और तबर्रा बराबर बराबर रहते हैं। तवल्ला का क्या मतलब है? कि इन हस्तियों से मोहब्बत करना, इन चहारदा अनवार मुकद्दसा से, चहारदा मासूमीन से क्या करना? मोहब्बत करना। ये होता है विला और ये होती है तवल्ला। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है? तबर्रा। यानी क्या मतलब? इनके दुश्मनों से नफरत करना, बेजारी करना, दूर रहना, उनके कामों से नफरत करना। कि अहले बैत के दुश्मन क्या काम करते थे उस काम से दूर रहना तबर्रा है। तो वजह हमारे इस नुक्ते को भी अपने ज़हन में रख लीजिए कि तवल्ला का और तबर्रा का माना जबान से नहीं है। शायद ये नया नुक्ता हो।
ज़बान से नहीं है कि आप और मैं चारदा अनवार मुक़द्दसात से मोहब्बत करते हैं। कैसे पता चलेगा मोहब्बत करते हैं? कोई मीज़ान, कोई तराजू, कोई फार्मूला, कोई कुलिया, कोई कानून, किस तरह पता चले कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं? कहा पता तुम्हारे अमल से चलेगा। ठीक है ये बात? किससे? अमल से पता चलेगा कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो। यानी क्या मतलब? यानी जबान से कहने की जरूरत नहीं है। आपका और मेरा अमल दलील होगा। मैं नमाज को कितना पसंद करता हूं, मेरे इमाम नमाज को कितना पसंद करते थे। एक सलावत पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मौला ने मुझे नमाज के लिए क्या कहा? थोड़ा सा पानी बारह जी को सलावत पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंसान जिस हस्ती से मोहब्बत करता है, विलायत करता है, दोस्त रखता है, जिसको पसंद करता है, इंसान के अमल से पता चलता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। अब जिससे मोहब्बत करते हैं, सादा सी बात करता हूँ, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, आप वो काम करेंगे जिससे वो खुश होगा। आप जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं, आप हर उस काम से बचने की कोशिश करेंगे जिससे वो नाराज होता होगा। बस यही मायार है विला का, तवल्ला का, उनसे मोहब्बत करने का। तबर्रा और विला एक साथ होते हैं। मैंने कहा दोनों बराबर। जितनी आप मोहब्बत करते हैं उनसे, उतनी ही उनके दुश्मन से नफरत करते हैं। दुश्मन से नफरत से मुराद ये है जो काम वो दुश्मन करता है वो काम हम नहीं करेंगे। क्यों? उससे इमाम का दिल नाराज होता है। बस ये हुआ। और फिर आप जितनी, एक और नुक्ता देखें, जितनी आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, जितनी उतनी उसकी अतात भी करेंगे। ठीक है? उतनी अतात करेंगे। अब आप और मैं अपनी जिंदगी में देखें, हम कितनी अतात करते हैं उनकी, कितनी, ये सादा करता हूं, कितनी उन हस्तियों की बात मानते हैं और कितनी उनकी बात नहीं मानते। बिल्कुल सादा सी बात अर्ज करो। सुबह से उठकर शाम तक मैंने जितने काम किए, रात सोते वक्त जब बिस्तर पे जाऊं, मुझे एक बात सोचना मेरा फर्ज है, मेरे ऊपर वाजिब है। मुझे फरमा रहे हैं ना? एक सलावत पढ़ने वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। जब हम बिस्तर पे जाएं तो एक बात सोचें, वो क्या है? आज मैं सुबह जब उठा था, पहले तो ये सोचे किस वक्त उठा था, और अभी शाम सो रहा हूं, सोने तक मैंने कितनी बातें अल्लाह और मासूमीन की मानी है और कितनी बातें उनकी। एक सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और कितनी बातें उनकी नहीं मानी। ठीक हो गया? जितनी बातें आप और मैं सुबह से शाम तक इन हस्तियों की मानते हैं, उतनी हम इनसे मोहब्बत करते हैं। देख सकते हैं अपनी मोहब्बत को देख सकते हैं कि हम इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। कैसे पता चलेगा? हर रोज देख सकते हैं, हर रोज चेक कर सकते हैं। मैंने सुबह से शाम तक कितनी बातें इनकी मानी है, कितना कहा इनका माना है, कितना इनके फरमान पर अमल किया है, और कितनी मैंने अपने नफ्स और शैतान की बातें मानी है। कर सकता है इंसान फैसला। मैं सुबह उठा तो शाम तक मैंने कितनी बातें शैतान की मानी है, कितनी अपने नफ्स, कितने गुनाह किए हैं, कितनी नेकियां की हैं। बस यही माया है। जितने अच्छे काम किए हैं उतनी हमें अहले बैत से मोहब्बत
जितने बुरे काम किए हैं उतनी हमें किसी और से मोहब्बत है, वो और आपका और मेरा नफ्स और शैतान है। बस विलायत का एक माना भी यही है, चूंकि मैं तवल्ला करूं, विलायत का एक माना भी यही है कि किसी के फरमान के तहत रहना। विलायत क्या है? किसी के हुक्म के तहत जिंदगी गुजारना। हम जितनी जिंदगी इनके हुक्म के तहत गुजार रहे हैं उतनी हमारे अंदर विलायत है, उतनी मोहब्बत है हमारे अंदर, और जितनी मुखालफत करते हैं उतनी हमारे अंदर विलायत नहीं है। बस हमें ज्यादा से ज्यादा विलायत देखिए, मोहब्बत वो चीज होती है जिस पे इंसान सारा कुछ कुर्बान कर देता है, ऐसे ही है ना। अगर आपको और मुझे इन हस्तियों से सही मोहब्बत हो जाए, कब होगी? इमाम ज़मानी, जब पहचान हो जाएगी, जब मारिफत हो जाएगी, वक्त के इमाम की मारिफत। एक जुमला अर्ज करो, कैसे मारिफत होगी? फकत एक, हम हजरत के बारे में कुछ चीजें, इमाम के बारे में हमें जाननी चाहिए। मसलन मैं अर्ज कर रहा था, उसी पे हूं, सबसे बड़ी मजलूमियत, ये जुमला मैंने शुरू में कहा था, अगर आपके ध्यान में हो, सबसे बड़ी मजलूमियत इन 14 हस्तियों की क्या हो सकती है? ठीक है, अच्छा सवाल है ना। यानी हम कहते हैं मासूमीन बहुत मजलूम थे, बहुत मजलूम थे, बहुत मजलूम थे। इमाम हुसैन जैसा मजलूम अल्लाह की कायनात में कोई नहीं है। आए देखें उनकी सबसे बड़ी मजलूमियत क्या थी। सबसे बड़ी मजलूमियत उनकी ये थी कि उन्हें किसी भी दौर में अपने मानने वाले जितने जरूरत थे उतने नहीं मिल सके। बात समझ आ गई जी? जितने जरूरत थे उतने नहीं मिल सके। आप कहेंगे बहुत, तो आइमा मासूमीन ने खुद भी कहा बहुत नहीं है, बहुत कम है। मौला अमीर से जब ये सवाल किया गया तब भी इमाम ने यही जवाब दिया। इमाम रज़ा इस्लाम से जब सवाल किया गया तब भी यही जवाब दिया। मौला आप अपने दुश्मनों के खिलाफ क़याम क्यों नहीं करते? क्या ये खिलाफत आपका हक नहीं है? कहा क्यों नहीं? हमें अल्लाह ने खलीफा बनाया कायनात का, अल्लाह ने वली बनाया है। कहा मौला तो क्यों खड़े नहीं होते इन बातिल ताकतों के खिलाफ? बात समझ आ रही है ना? ये जिन्होंने आपके मिंबर और कुर्सी पर कब्जा किया हुआ है, खिलाफत संभाली हुई है, इनसे क्यों नहीं ले लेते आप खिलाफत? मौला अली ने क्यों नहीं ली? तकरीबन 24 साल, साढ़े 24 साल तक मौला अली ने क्यों नहीं ली? मौला अली ने फरमाया इसलिए नहीं ली, मुझे जितने मुखलिस, जानसार, फिदाकार जरूरत है उतने मेरे पास नहीं है। यही सबसे बड़ी मजलूमियत, यही सबसे बड़ी मजलूमियत है। पूरी कायनात का खुदा जिसको वली और मौला बनाए, पैगंबर के बाद उसको आदम की औलाद से चंद ऐसे इंसान न मिले जितने उसको जरूरत है। और किया आपने, हालांकि ये तो सारी कायनात का वली है नहीं है? ये तो इंसानों का मौला है, ये तो जिन्नों का मौला है, ये तो परिंदों का मौला है, ये तो दरिंदों का मौला है। इसकी विलायत खुदा के बाद सारी खुदाई पर है, ऐसे ही है ना? सबका मौला। और फिर इस सारी खुदाई का इंसानों में से इतने इंसान नहीं मिल सके जितने वक्त के हर इमाम को जरूरत है, नहीं मिल सके। बस यही मजलूमियत सबसे बड़ी। और आए, बस पैगाम दूं आपको, ज्यादा ज़हमत न दूं। आए आप और मैं एक वादा करें, यहाँ एक मस्जिद में ऐद करें, एक ईमानी ऐद करें, एक फायदे वाला वादा करें, एक वो वादा करें जिससे हमारी दुनिया भी सब्ज हो जाएगी, आखिरत भी रोशन हो जाएगी। वो वादा क्या है? कि पैगंबर को उतने जानशीन, उतने मुखलिसीन नहीं मिले, हमने सुन लिया। अली मुर्तज़ा को उतने जानसार, फिदाकार नहीं मिले, सुन लिया। हसन मुज्तबा को नहीं मिले, ठीक है? मौला के नीचे से मुसल्ला खींचा गया, इमाम को खंजर मारा गया, सख्त तरीन हालात, अली अमीर के सख्त तरीन हालात, कभी जमल हो रही है, कभी सफीन हो रही है, कभी नहरवान हो रही है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सख्त तरीन हालात देखे आपने।
30 سے 40 ہزار کی فوج کے مقابلے میں حسین کے پاس زیادہ سے زیادہ 114 یا 124 افراد ہیں. ایسے ہی ہے نا امام حسین کے پاس. یہ جو 72 کا لفظ کہا جاتا ہے یہ ایسے مشہور نہیں ایسے مشہور ہے. ٹھیک ہے ہم تو طالب علم ہے نا. جو صحیح تعداد ہے امام کی وہ 114 یا 124 تک لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے ابھی آپ نے 72 کی بات کی ہے تو میں آپ کو ایک جملہ کہوں. 72 وہ ہیں جو گنج شہداء میں دفن ہیں. آگے بات سمجھ. امام حسین علیہ السلام کے پاؤں کی طرف جو ایک بڑی قبر ہے جس میں 72 دفن ہیں وہ 72 شہداء ہیں. انہیں گنج شہداء کہا جاتا ہے. حبیب ان میں نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جو لوگ زیارت کر کے ہیں حبیب کی جدا ذریعہ ہے. آن ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے اور حر ابن یزید رہائی ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے لہذا ہمارے فقہاء اور جو محققین ادھر نہیں جاتا جو مقاتل لکھنے والے ان نے کہا 114 تک, بعضوں نے 124 تک بھی لکھا ہے, بعضوں نے 104 تک بھی لکھی ہے تعداد. بہرحال 100 سے زیادہ ہے. 100 کر لیں آپ. میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. 72 نہ کریں 100 کر لیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے 150 بھی کر لیں تو کیا ہوگا. اچھا پیغمبر نبی کریم, یہ بڑا پیغام ہے, نبی کریم علیہ السلام 11 ہجری میں دنیا کو چھوڑتے ہیں. ایسے ہے 61 ہجری میں اس پیغمبر کا وہ بیٹا جس کے لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی کیا مطلب, یعنی گویا جب حسین کو دیکھو ایسے سمجھو جیسے رسول ہے. حسین مجھ سے ہے اتنا کہہ دیتے. ایک رشتہ تھا, توجہ فرمائیں, ایک رشتہ تھا حسین مجھ سے. کیا تعجب کی بات ہے. حسین نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے. ایسے ہی ہے نا, بیٹی کا بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے مجھ سے ہے, لیکن پیغمبر نے کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, اور میں حسین سے ہوں. پیغمبر کیسے حسین سے ہے. بس یہ ایک سوال تھا. پس پیغمبر کے 50 سال بعد 11 ہجری میں پیغمبر دنیا چھوڑتے ہیں. 61 ہجری میں پیغمبر کا وہ بیٹا جس کے لیے فرمایا یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے, میں اس سے ہوں. گویا حسین کا ہر کام میرا کام ہے. اسے 100 فقط صحابہ مل سکے جن میں سے ہاشمی بھی ہیں 18 یا 19 ہاشمی بھی ہیں ان کے علاوہ. یعنی 80 افراد پیغمبر کے زمانے میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی کسی کو یاد ہے؟ تقریباً 1,24,000. 1,24,000 میں سے اپنے نانا کے 1,24,000 صحابہ میں سے حسین کو فقط 80 یا 100 مل سکے. بس حسین بڑے مظلوم ہیں. بات سمجھی نا آپ نے. حسین کو جتنے ضرورت تھے اتنے نہیں مل سکے. انصار کم تھے, آوان کم تھے, دوست کم تھے, مخلص کم تھے. مولا ہم نے سن لی آپ کی مظلومیت, آپ کو آوان و انصار کم ملے. یہی مظلومیت سید سجاد کی, یہی امام باقر کی, یہی امام صادق و کاظم و رضا و تقی و نقی و عسکری کی, سب کی یہی مظلومیت ہے. اور جو پیغام دینا ہے وہ یہ, آپ کے مولا و آقا سلطان زمانہ امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کی مظلومیت بھی یہی ہے. کیا ہے کیا ہے وہ مظلومیت؟ کہ مولا کو جتنے جانثار چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر پیغمبر کو چاہیے ضرورت تھے تو امام زمان کو بھی ضرورت ہوں گے. اگر علی امیر کو ضرورت تھے تو اس مولا کو بھی ضرورت ہوں گے. اگر ان 12 ہستیوں کو ضرورت تھے اس مولا کو بھی ضرورت ہوں گے. سب سے بڑی مظلومیت ان کے پاس مخلص اصحاب نہیں تھے. آئیں آپ اور میں ایک کام کریں, آج سے معرفت فقط اسی کا نام ہے. امام زمانہ کی معرفت فقط یہی ہے, خود اس مولا کو پہچانے اور اس مولا کے لیے انصار پیدا کریں, آوان پیدا کریں, جانثار, عاشق, فداکار. اور یہ جملہ کہ اپنے مولا سے, مولا آپ کے آبا و اجداد کی جو مظلومیت تھی ہم اس کا جبران کریں گے, ہم اس کا ازالہ کریں گے, ہم آپ کو ویسا مظلوم نہیں رہنے دیں گے. بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ بس یہ معرفت ہے اپنے وقت کے امام کی کہ آپ اور میں اس مولا کو پہچانیں, اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کے لیے آوان و انصار پیدا کریں. ایک پیغام اور دوں, میں اپنے نفس سے نہیں لڑ سکتا. اگر لڑتا تو علی امیر نے فرمایا آپ مجاہد اکبر ہو جاتے. مجھے
का अफजल जिहाद युजाहिद अर्रजल बिनफ्से, सबसे बड़ा जिहाद इंसान का ये है कि वो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे, नफ्स के खिलाफ जिहाद करे। मतलब नफ्स के खिलाफ जिहाद क्या होता है? कहा गुनाह न करे, ऐसे ही है ना, अपने आप को गुनाहों से रोके, गुनाह के खिलाफ जिहाद करे, क्योंकि नफ्स हमें गुनाह की तरफ लेके जाता है। ख्वाहिश नफ्स का मतलब होता है गुनाह करना। इमाम ने कहा गुनाह न करे, इस नफ्स को, नफ्स के घोड़े को कंट्रोल करके रखे। बोला क्या होगा? कहा मुजाहिदे अकबर होंगे, मुजाहिदे अकबर होंगे। बोला वो जो मैदान जंग में जाता है, आप क्या समझते हैं, शहीद का सवाब कम होता है? शहीद का सवाब बहुत ज्यादा है। जो राह खुदा में, अल्लाह की राह में शहीद होता है, उसका बहुत बड़ा मकाम है। फरमाया वो जो अपनी जान दे देता है अल्लाह के रास्ते में, तलवार के जरिए शहीद हो जाता है या किसी भी तरह शहीद हो जाता है, इमाम ने फरमाया वो मुजाहिद असगर है। कैसा मुजाहिद है? असगर, छोटा मुजाहिद। फिर फरमाया अफजल जिहाद युजाहिद अर्रजल बिनफ्सिही व हवा, सबसे अफजल और आला और बड़ा जिहाद यह है कि इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करे। जब मैं अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकता, मैं इमाम ज़माना का सिपाही नहीं बन सकता। इमाम ज़माना का सिपाही बनने के लिए आए आप और मैं प्रैक्टिस करें, वर्जिश करें, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करें। जब कामयाब हो गए, यकीन कर ले आप इमाम ज़माना के सिपाही बन गए हैं। बोला कि नासिर बन गए हैं, बोला कि मददगार बन। ये है इमाम को पहचानना और इमाम के काम आना। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अला वसम मुहम्मद व आले बैत मुहम्मद का करीम अल्लाह या महमूद बिहक़ मुहम्मद या आला बिहक़ अली या फातिर बिहक़ फातिमा या हुसैन बिहक़ हसन या कदीम अल ihsan बिहक़ हुसैन मज़लूम व तिस्सतिल मासूमीन मिन औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार आलम, हमारी इस अकीर सी नाचीज़ सी कोशिश को अपनी और अपने पाक वली की बारगाह में बतौर इबादत शुमार फरमा। परवरदिगार आलम, इसी ज़िक्र के सदके हमारे और जुमला मोमिनीन मोमिनात के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला जो दुनिया से चले गए हैं, इसी ज़िक्र का वास्ता उनके सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला उनकी मौत के बाद की सारी मंजिलों को आसान फरमा। मेरे करीम अल्लाह, जो बीमार है सैयद सज्जाद की गैरत की बीमारी का वास्ता उनको शिफाए कामिला और आजिला नसीब फरमा। मौला हम सब खुसूसन में नाचीज़ रूहानी बीमार हैं, हमारी रूहों को शिफा नसीब फरमा। परवरदिगार आलम, वास्ता मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद का जो बे औलाद है उनको औलाद नसीब फरमा। जिन्हें औलाद दी है उनकी औलादों को नेक और साले फरमा। हम सबको हज व ज़ियारत की तौफीकात नसीब फरमा। मौला सब मोमिनीन मोमिनात जिंदा है या मरहूम है, उनकी जितनी मुश्किलें हैं उनको आसान फरमा। मौला मोमिनीन मोमिनात जिंदा है या मरहूम है, उनकी जितनी हाजतें हैं परवरदिगार आलम उनकी हाजतों को कबूल मंजूर फरमा। इमाम ज़मान के करीमाना नफीसाना मेहरबाना ज़हूर में ताजील फरमा। हमें मौला अलैहिस्सलाम की ज़्यादा से ज़्यादा मार्फत नसीब फरमा। करीम अल्लाह वास्ता मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद का हमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में चंद दिन गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अगर दुनिया से चले जाएं, अगर मर जाएं तो रजत की जिंदगी नसीब फरमा। हमारी जिंदगियों का खात्मा ज़हरा के बेटे के कदमों में फरमा। परवरदिगार आलम, तू हमारे हाल को बेहतर जानता है, जो हमारे हाल में बेहतर है वो हमें अता फरमा। जो हमारे हाल में नुकसान है उससे हमें महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमा। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतुल फातिहा लिल मरहूमीन। Allah